जी बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन बच्चे, थैंक यू। अच्छा बच्चे, आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है विच इज़ फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन एंड ऑल ऑफ यू हैव बीन असाइन्ड योर टॉपिक्स। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द थेरीज। मुझे लिस्ट जो टॉपिक्स आपने असाइन किए हैं वो मॉर्निंग में से नहीं पहुंची। मुझे लिस्ट जो मिली है वो सिर्फ फरीद से मिली है। What about your class, हुमा, वकार? मैम मैंने बच्चों को साइन कर दिए थे मैम, मैं आपको भी सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा चलें ठीक है। सो इनिशियली वी विल स्टार्ट विद, ऑल्दो द ऑर्डर इज डिफरेंट, मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें दैट इज स्टार्टिंग विद फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड देन देयर आर perhaps school of thoughts and then it comes to these learning theories. आप लोगों ने कैसे किया हुआ है? all of you are ready for this? Can we start with the language, these theories, learning theories? Yes Arish, can we start with it? मैम मैंने सबको ही कहा था कि वो प्रिपेयर रखें ना अपने टॉपिक्स। अभी जी जिनको ये असाइन है ना थेरीज, तो मैम वो स्टूडेंट्स अभी मेरे ख्याल क्लास में हैं ही नहीं। अच्छा, so is there anybody with the structuralism? We can start with that then. शुमाइला Yes, इजाज। ma'am. चलें हम स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट कर लेते हैं। कैन यू सेंड मी पिक्चर ऑफ दी स्कूल ऑफ थॉट्स, because I don't have school of thoughts at the moment with me. स्ट्रक्चरलिज्म का ठीक है, दिस वी कैन डिस्कस, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर चॉम्स्की एंड लिंग्विस्टिक्स आई विल हैव टू हैव दैट। ठीक है, स्टार्ट करें आप स्ट्रक्चरलिज्म एंड जस्ट टेल मी अ ब्रीफ समरी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। And if there is anything which you want me to explain, I will explain that. Just give a sort of revising points. Shumaila. Okay, ma'am. Ferdinand de Saussure was the founder of structuralism, and he was the first who negated historicism, and he was wanted to shift from focus from historical prevalence, and he shift focus from historical analysis to non-historical analysis, and he began a structuralistic movement. According to Saussure, study of meaning is important, and another name for structuralism is semiotics. In this school of thought, speech is important than writing, and the central core of language learning is the acquisition of the knowledge of phonology, grammar, and lexis. In this, we encode the message, the sender will encode the message, and the receiver will decode the message, and receiver again encode the message, and sender decode. In this way, the process of encoding and decoding goes on. Saussure argued that the relationship between a linguistic unit, signifier, and its meaning is usually arbitrary. Language can be studied synchronically, and it is based on behaviorism. मैम मेन तो इसमें यही बताया हुआ है। Right. Actually, de Saussure was the first person who denied, uh, not exactly Historicism. yes, historicism, not actually denied, but he presented another direction of study in linguistics. So उसने Yes, ma'am. ये कहा कि historicism is not everything, because before this historicism was prevailing.
उसने अपनी पहली Yes. बुक लिखी जिसमें उसने लैंग्वेज के फंक्शंस और लैंग्वेज की डिफरेंट चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज में पढ़ी हैं। दैट वाज एग्जैक्टली नॉट स्ट्रक्चरलिज्म। शुरू में जो सारी डिटेल है, फर्स्ट कॉलम इज नॉट अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, दैट इज अबाउट द न्यू डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग व्हिच लेड टू स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म के जो Yes. बानी थे वो ब्लूमफील्ड था एक, और एक इसके साथ शायद फ्राइज था, चार्ल्स फ्राइज। Ma'am, Charles Price. Yes, so these two people were inspired from the ideas of Yes, ma'am. Ferdinand de Saussure and then they initiated. सबसे पहले जो इसने बात की थी डी सॉसवा ने, वो ये बात थी कि लैंग्वेज जो है वो असल में सिंबलाइज करती है मीनिंग को, और उसने इसको एक नाम दिया सिमियोटिक्स का, कि लैंग्वेज जो है एक्चुअली दैट इज रिलेटेड टू सिंबल एंड the purpose of those symbols is to communicate, is to deliver messages. तो फिर उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट हुआ, और स्ट्रक्चरलिज्म में फिर ये कहा गया कि लैंग्वेज में जो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थ्री स्किल्स हैं जो लैंग्वेज को सिखाने के लिए होनी चाहिए। एंड लेटर ऑन ये जो लोग थे स्ट्रक्चरलिस्ट, they joined their hands with behaviorism and gave rise to a teaching method. जी नेक्स्ट, चॉम्स्किन लिंग्विस्टिक्स जिसके अंदर जनरेटिविज्म है। यस, Yes. वो कौन करेगा? Assalamualaikum class. वालेकुम सलाम। Today the topic of my discussion is Chomsky linguistics, also known as generativism. Chomsky was the founder of generativism. The revolution in linguistics affected by Noam Chomsky and his followers from the late 1950s. Behaviorism, encouraging the belief that language learning involves active mental process and is not simply the formation of habit. Chomsky linguistics shared with structural linguistics an exclusive attention to the formal language system and its emphasis on phonology and grammar. Generativism emphasizes on phonology and grammar. One significant filter for Chomsky's ideas into language teaching is a second language acquisition theory. Although Chomsky's ideas about language acquisition were explicitly concerned with the acquisition of a first language by children, many second language acquisition theories have suggested that the same acquisitional process बच्चे may एक still be मिनट, activated. एक मिनट जरा, मुझे वो एक कॉल आ रही है, लेट मी लिसन दैट कॉल। Okay, ma'am.
Yes, Anila, you can start. Anila? ओके मैम। यस मैम। नेक्स्ट इसमें वो ये बता रहे हैं कि जो प्रोसेस L1 फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में अप्लाई किए जाते हैं वही जो है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। और इसमें जो टीचिंग मेथड है वो नेचुरल अप्रोच यूज किया जाता है। नेक्स्ट मैम ये हमें इस पर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट कॉलम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। Walaikum salam. Myself Hima Ashraf and I am continue the second column of generativism. जो जनरेटिविज्म का सेकंड कॉलम है इसमें ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज टीचिंग में जो है फोकस जो ज्यादा है ग्रामर के ऊपर किया जाता था जो चॉम्स्की लिंग्विस्टिक है उसमें, और जो ग्रामर है वो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो ग्रामर जो है वो सीखी जाती थी और ये अनकॉन्शियस होती है और उसका जो कॉन्शियस एक्सप्लिसिट लर्निंग है वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। और जो ग्रामर सीखी जाती है वो इन्वायरमेंट होती है और ये एक यूनिवर्सल रूट जो है उसको फॉलो करती है। जिस तरह से जो है चिल्ड्रन जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज को अपने जो ग्रामर को सीखते हैं वो सिस्टमेटिक सीखते हैं, सिस्टम्स में सीखते हैं, एक नेचर ऑर्डर में सीखते हैं। जैसे वो पहले जो है वो नाउन बोलता है, फिर नाउन फ्रेजेस बोलता है, वर्ब या और फिर वर्ब फ्रेज इस तरह से जो बोलता है सिस्टम। अब चॉम्स्की कहता है कि जो अडल्ट हैं उनकी ग्रामर में भी यही ऑर्डर होता है, लेकिन डिफरेंट ये होता है कि उनकी ग्रामर थोड़ी सी चेंज होती है। उनमें जो है वो यूनिवर्सल जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। लाइक जो लर्नर है उसकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस इसमें आ जाती है और ये उसमें इफेक्ट करती है। लेकिन सिस्टम जो है वो जो उनका नेचर ऑर्डर होता है वो सेम होता है। जिस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज में चाइल्ड का ऑर्डर होता है कि वो पहले जिस तरह से वो ऑर्डर फॉलो करता है उसी तरह से सेम जो है वो लर्नर्स फॉलो करते हैं, लेकिन जो सिर्फ फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद इनके जो आइडियाज है चॉम्स्की इनके ये पॉपुलर हो गए 1972 1980s में। और इसके बाद जो है इस पे जो है वो क्रेशन और टेरल ने वर्क किया और ये इसके फॉलोअर थे, उन्होंने नेचुरल अप्रोच जो है उसको किया। और फिर उन्होंने जो है इसमें चॉम्स्की कहता है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो इक्वेटेड है जो हमारी मेंटल ग्रामर होती है उसकी डेवलपमेंट जिस तरह से होती है इस तरह से जो है वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। और कहते हैं कि लैंग्वेज जो लर्निंग है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है। अगर इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली और रिलैक्स होगा तो लर्निंग मैम इसमें ये बताया हुआ है। जी, दूसरे सेक्शन में से जिस बच्चे के पास है ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, डू दे वांट टू ऐड समथिंग? मैम सेकंड कॉलम मेरा था। मरियम का? एक मिनट बच्चे, एक सेकंड जरा, लेट मी हैव अ कॉल। जी बच्चे, मरियम? यस मैम। यस मैम बेसिक थिंग जो थी जनरेटिविज्म उसमें ये बताया गया था कि जो ग्रामर है वो इनेट एबिलिटी है ह्यूमन की, और जो फोनोलॉजी है वो learn किया जाता है। और जो मेथड था वो था जनरेटिविज्म और मेंटलिज्म को मिला के बनाया गया था। जैसे कि जनरेटिविज्म ये बता रही थी कि व्हाट इज लैंग्वेज और मेंटलिज्म ये बता रही थी कि हाउ इट शुड बी लर्न। तो इनको मिला के नेचुरल अप्रोच एक मेथड बनाया गया था जिसके जरिए पढ़ा रहे थे लैंग्वेज को। और मैं दे डोंट बिलीव इन एरर करेक्शन, बल्कि वो
नेचुरल फ्लो और ग्रोथ पे भी किल कर देती है। इसमें था ये था कि जो ग्रामर है वो टेसिट नॉलेज है, इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो नेचुरल होती है, ये कॉन्शियस या एक्सप्लिसिट लर्निंग से अनअफेक्टेड होता है, और ये इंटरनली जनरेटेड होता है और जस्ट ट्रिगर्ड बाय फेवरेबल एनवायरनमेंट और देन ये फॉलो करता है एक यूनिवर्सल रूल। और then इसके implications ये उन्होंने कहा था कि फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग वाला इन्वायरमेंट ही फेवरेबल, और जो इसका नेचुरल रूट है वही है जो डिजायर्ड एंड तक हमें लेके जा सकता है, और वो इफेक्ट होता है यूनिवर्सल फैक्टर्स से। और फिर मैम 1970 से 80s में इसके जो आइडियाज थे चॉम्स्की के वो फैशनेबल हो गए थे, और देन लैंग्वेज लर्निंग को इक्वेट किया जा रहा था मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर से और उसकी डेवलपमेंट से। एंड देन मैम ग्रामर एक्विजिशन को बिलीव किया जा रहा था कि इट टेक्स प्लेस नेचुरली, और जो कॉन्शियस फोकस है वो मीनिंग पे होना चाहिए रादर देन फॉर्म। मैम ये बात एक मुझे पूछनी थी आपसे, ये एक लाइन नोट्स में लिखी हुई थी कि ग्रामर एक्विजिशन वाज बिलीव्ड टू टेक प्लेस नेचुरली व्हाइल कॉन्शियस फोकस वाज ऑन मीनिंग रादर देन फॉर्म। ये वही चीज है जो हम काफी दिनों से डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है कि हर रोज ही के फॉर्म पे फोकस नहीं होता, इसमें फोकस जो होता है वो मीनिंग को कन्वे करने पे होता है। ओके मैम, बाकी सारी चीजें यही थी बस। जी, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें कि एरर करेक्शन नहीं की जाती, जो इसका मेथड होगा, और ये एरर्स को वेलकम करते हैं। इंटर लैंग्वेज का वर्ड नहीं आप में से किसी ने भी यूज किया, जो कि होना चाहिए था इसमें, है कहीं इसमें यस मैम, इंटर यस मैम। अच्छा, और इसमें ये है कि नेचुरल एबिलिटी है लैंग्वेज लर्न करना ह्यूमन बीइंग्स की, और ये ट्रिगर होती है, ये जो एबिलिटी है हमारे पास, या हमारे पास जो डिवाइस है, वी हैव device which has universal grammar already fit inside it, और ये ट्रिगर होती है एक्सपोजर से। लैंग्वेज का जब एक्सपोजर होगा तो ये ट्रिगर हो जाएगी, और द लैंग्वेज लर्निंग विल फॉलो अ यूनिवर्सल रूट। ठीक, और यूनिवर्सल रूट होता है इसका, जिसको भी आप नेचुरल ऑर्डर भी कह सकते हैं। जो हमने नेचुरल ऑर्डर पढ़ा है ना उसमें क्वेश्चन में, सो इट रिजेंबल्स दैट यूनिवर्सल रूट, कि जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसके अंदर यू विल learn particular things before and other things after that in a sequence. So there will be stages, or there will be a sequence of learning things which is universal, और उसको छेड़ा नहीं जा सकता, उसमें से चीजें इधर उधर नहीं हो सकती। इंटर लैंग्वेज इज अ थिंग which इंटर लैंग्वेजेस शायद मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको, कि जब लैंग्वेज आप लर्न करना स्टार्ट करते हैं, either that is L1 or L2, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके until you reach the adult like language stage, उसके दरमियान में जितनी भी स्टेजेस आती हैं उनको इंटर लैंग्वेजेस कहते हैं। और इंटर लैंग्वेजेस आर सॉर्ट ऑफ a route between or a route which a learner follows from start to the destination. इसके अंदर बहुत से, इसके अंदर एरर्स भी आते हैं, एंड ये जो मेंटलिस्ट हैं दे वेलकम एरर्स एज दे थिंक दैट एरर्स शो द प्रोग्रेस। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि माय फादर कम्ड yesterday, so it shows, although it is an error, but it shows a sort of development in the child, that the child has got this idea that whenever I have to use, or whenever I have to make some sentence in past, I have to use second form. So the child has got an idea of speaking in past and future or something like that. So interlanguages, although they show errors, but these are stages of progress.
और इसमें कोई चीज जो आपको लगी हो कि आई मस्ट डिस्कस? जी हमारा आप भी पूछ सकती हैं, एंड नो मरियम आप मैम, ये भी। सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, इसके भी कॉलम्स रहते हैं कुछ? नो मैम, इसके 2 ही कॉलम्स थे। अच्छा, बच्चे आप बाकी लोग जब इसको पढ़ेंगे तो इफ स्टिल यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट तो आप किसी भी दिन मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें से इस लाइन की समझ नहीं आई। अच्छा, स्ट्रक्चरलिज्म में मॉर्निंग में कौन था? Who was there? Arish, you have the list. Arish. ओके, अभी हमें नहीं मिल रहा ये बच्चा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट कौन है? बट अरीज शुड बी देयर टू गाइड, या आप खुद ही से आगे शुरू कर दें? फंक्शनलिज्म किसके मैम पास है? मैम मॉर्निंग में अदरान अदनान, who is Adnan? अस्सलाम वालेकुम मैम। बच्चे वालेकुम सलाम। मैम जी मेरा टॉपिक फंक्शनलिज्म है। अच्छा, अदनान को नोट कर लें। वकार जैसे ही अदनान आता है तो फिर हम उसको पकड़ लेते हैं। ओके मैम। जी मारिया। मैम फंक्शनलिज्म का मेन टास्क इज टू परफॉर्म फंक्शन। लैंग्वेज लर्नर्स परफॉर्म टास्क विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। इसके लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज की हेल्प से अपने टास्क जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, और इनके जो टास्क होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं वो उनके एक्चुअल लाइफ से रिलेटेबल होते हैं और मीनिंगफुल टास्क होते हैं। मैसेज फोकस्ड होता है इसमें फंक्शनलिज्म में, और ये इस चीज़ पे फ्लुएंसी पे बिलीव करते हैं, एक्यूरेसी पे बिलीव नहीं करते। लैंग्वेज लर्नर मस्ट बी एबल टू कन्वे द मैसेज, और एरर्स को इसमें इग्नोर किया जाता है, और ये लैंग्वेज और सोसाइटी की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम था बच्चे। मैम ये ओवरऑल जो आपने नोट डाउन करवाया था वो वाला था। मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर वाले नोट्स नहीं थे, वो थोड़ी देर पहले ही मिले, तो मुझे वो रीड आउट करके सही से समझ नहीं आई थी। समझना ही तो है हमने यहाँ पे। जो यस आपको समझ नहीं आया वही तो समझना है। यस मैम, सेकंड पार्टिसिपेंट अभी इसको एक्सप्लेन करता है तो मैं फिर नोट डाउन कर लूँगी। अच्छा, इनको हैंड आउट्स आप लेना किसी से, आपको कल ही ले लेना चाहिए था। जी मैम, अरीज ने थोड़ी देर पहले वो शेयर किए हैं। अच्छा चले बच्चे, कौन है वकार आपके सेक्शन में से? मैम सेकंड कॉलम मैम एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट। मैं करती हूँ एक्सप्लेन। ये आपको असाइंड है अरूज? यस मैम। ओके जी। फंक्शनलिज्म इसमें ये बताया कि जो पहले हमने लाइक स्कूल और एरिया लिंग्विस्टिक डिस्कस किए हैं, उनमें यही बिलीव किया जाता है कि जो हम लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं विद रेफरेंस टू इट्स यूज एंड कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जो फंक्शनलिज्म है उसमें ये कहा जाता है कि हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, अ टूल टू ट्रांसपोर्ट आवर मैसेज। जो फंक्शनलिज्म थे कॉन्ट्रारी टू स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो थ्योरी पे ये स्कूल है ना उसके ऑपोजिट है। इसमें कहा जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म ये था कि हमें पहले रूल्स लर्न करने होंगे, उन्हें अप्लाई करना होगा, लेकिन फंक्शनलिज्म में वो कहते हैं कि हमें वी अंडरस्टैंड लैंग्वेज फ्रॉम इट्स फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। It emphasizes on the phonological, syntactic, semantics and pragmatic function of language. Like हम अगर phonologically देखें
तो इसके कोई भी लैंग्वेज का साउंड सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम डीपली स्टडी करें तो हमें इसके स्ट्रेस पैटर्न्स और इंटोनेशन पैटर्न्स का पता चलता है। मतलब यही जो पैटर्न्स होते हैं, दीज आर द आउटपुट्स ऑफ योर फंक्शन। क्योंकि जो सेम फ्रेजेस होंगी, सेम क्लॉजेस, सेम सेंटेंसेस, वो हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंटली यूज करते हैं। तो जो कॉन्टेक्स्ट ये वेरी करते हैं हमारे स्ट्रेस पैटर्न्स। लाइक हम अगर अपने क्लासमेट से बात करें तो हमारा एक्सेंट डिफरेंट होगा, अगर हम यही टीचर से कोई बात करें तो हमारा एक्सेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो जो ह्यूमन brains हैं that are focusing on words in order to fulfill function। तो हमारे वर्ड होंगे, हमें पार्टिकुलर सिचुएशन में उनके डिफरेंट मीनिंग्स होना है और जो हमारे लैंग्वेज के फंक्शन से ही बनेंगे। जो कि सोसाइटल फंक्शन को कंसिडर किया जाता है इसमें कि हाउ language is used in society, how we fulfill our desires by living in society with the help of language as a tool। हमें ग्रामर को लर्न करने की नीड नहीं है पहले, लेकिन जो हमें फंक्शन है जो हमें पहले लर्न करने हैं, इसके यही फंक्शन होते हैं दैट क्रिएट्स लैंग्वेज। So in order to understand the language, we need to understand the function of language। That's बहुत important है because we should know norms and values। बच्चे आपकी आवाज में ना डिस्टॉर्शन है, पहले भी एक बच्ची की आवाज में थी, शायद मरियम के में थी, तो पॉइंट्स उतनी क्लियरली नहीं समझ आते। या तो आपके इर्द गिर्द शोर हो रहा है या कोई और इशू है। नहीं मैम, शोर तो नहीं है। ओके देन स्टार्ट अगेन। यस मैम स्टार्ट से करूं या यहीं से? नहीं यहीं से करें। ओके मैम, जो linguistic structure है can only be understood and explained with the reference to the semantic and communicative functions of language, whose primary function is to be vehicle for the social interaction among human beings। हमें social context बहुत important होता है because we should know about our norms and values, and ये करता है कि how to apply language to perform various tasks। अब इस फंक्शनलिज्म से इन्फ्लुएंस होके एक वो बनी थी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, एक अप्रोच है जिसका फोकस एक मैसेज फोकस होता है, जो मैसेज पे फोकस करती है, परफॉर्मेंस ऑफ टास्क पे फोकस करती है, एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे इसका फोकस होता है। मैम दैट वाज इन द फर्स्ट कॉलम। आगे हुमा के पास है सेकंड कॉलम, शी विल डिस्कस। जी हुमा, यू कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। फंक्शनलिज्म में आगे ये बताया हुआ है सेकंड कॉलम में कि इसमें सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वी नीड सोशल नॉलेज, वी नीड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। फिर जैसा कि इसमें ये बताया गया है कि फंक्शनलिस्ट अलाउज मिस्टेक बिकॉज नो यूज ऑफ ग्रामर फर्स्ट। फिर इसमें ये बताया कि फंक्शनलिज्म को कंपेयर किया गया है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के साथ, क्योंकि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में भी ऐसे ही है कि उसमें हम लोग लैंग्वेज का यूज देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, it means that in functionalism we need to go in everyday situations. For example, people talk to each other, we talk to our friends, at workplace we need to talk to our boss. In these situations we use language as a tool to transport message. Functionalism emphasizes on semantic and pragmatic functions of language. जैसा कि एक एग्जांपल है कि असलम इज क्रो और इज ए क्रो और असलम इज जस्ट लाइक ए क्रो। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ये फर्क है कि असलम को क्रो के साथ ऐसे कंपेयर किया गया है कि मतलब कि वो क्लेवर है, उसको कंपेयर मतलब सीधा नहीं कहा गया कि वो क्रो है, वो क्रो की तरह है। यानी कि जो मीनिंग है एक सेंटेंस के वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। Context to context, our stress pattern become changed. For example, if we need to talk to our friend, our accent and stress pattern will be changed. Then if we need to talk to our teacher, again our accent will be changed. फिर इसमें ये बताया गया कि एलईडी डिवाइस का कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो है एलईडी डिवाइस होती है, इट्स ए मेंटल एबिलिटी which enables to acquire and produce language. Children are born with it. एलईडी डिवाइस मैम यही है सेकंड कॉलम में।
और फंक्शनलिज्म से जो थ्योरी बनती है वो अरूज ने बता दिया कि वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। मैम दैट्स इट। एक मिनट, आपने फंक्शनलिज्म को कंप्लीट कर दिया है? इट हैज 3 कॉलम्स। मैम नहीं, थर्ड कॉलम रहता है अभी। थर्ड रहता है। सेकंड कॉलम में देयर इज एन आइडिया ऑफ फॉसिलाइजेशन, यू डिडंट डिस्कस दैट। मैम उसकी मुझे समझ नहीं आई, मैंने आपसे पूछना था। कब पूछना था? आपने तो कहा कि ओवर है, अब नेक्स्ट को दे दें। मैम मेरे नोट्स पे ना थोड़ा मिस्टेक है, ये था मेरे नोट्स है ना। यस, देयर इज आल्सो ये जो कॉलम है ना, इट्स नॉट सो इजी। इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। इसके अंदर ये भी है कि एसएलए जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थेरिस्ट हैं उनमें और इसमें फंक्शनलिज्म में क्या रिजेम्बलेंसेस हैं और क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, ये भी इसी कॉलम में आता है। फॉसिलाइजेशन भी इसी कॉलम में आता है। और आपने इसमें एक एग्जांपल ऐड की जो इसमें से नहीं थी, उस एग्जांपल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ जी, आप जस्ट इतना बताएं कि इसमें हम मीनिंग को और प्रैग्मेटिक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम जो डिफरेंट सोशल सिचुएशंस हैं उनको, मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स की और सोसाइटी की सोशल एस्पेक्ट्स की इसमें इम्पोर्टेंस है। ये बात करें आप। मैं फॉसिलाइजेशन का आपको पहले मैंने बताया हुआ है फॉसिलाइजेशन का आपको, मेरा ख्याल है कि बताया होगा। यस मैम। क्या बताया? जी मैम बताया था आपने। जी बताएं, क्या बताया? मैम जो एरर्स अगर मतलब एरर्स अगर कोई मतलब स्टूडेंट्स या मतलब इस तरह लर्नर्स करते हैं ना, अगर उनको टाइमली करेक्ट नहीं किया जाता तो वो माइंड में स्टोर हो जाते हैं, मतलब तो फिर वो जो है वो फॉसिलाइजेशन अगर हम उन्हें करेक्ट नहीं करते तो फिर वो फॉसिलाइजेशन हो जाती है, मतलब वो स्टोर हो जाते हैं माइंड में, बिल्कुल वैसे ही। यस, और इस ये आइडिया किन लोगों का है? विच स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो इस पे बिलीव करते हैं और कौन नहीं करते? ये आइडिया है किनका? इन्होंने ये कहा कि फॉसिलाइजेशन होती है। मैम ऑडियो लिंगुअल मेथड में। जी बिल्कुल, और ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है उसके पीछे क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। यस, उसके पीछे स्ट्रक्चरलिज्म है और उसके पीछे बिहेवियरिज्म है। ठीक है? बिहेवियरिज्म ये कहता है कि अगर आप एरर्स को टाइमली करेक्ट नहीं करेंगे, उसको फौरी तौर पे उनको करेक्ट नहीं करवाएंगे, एरर्स अगर रिपीट हो जाएंगे तो फिर एरर्स जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। ठीक है? और एरर्स के लर्न होने को, एरर्स के स्टोर होने को हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है? और ये आप ऑडियो लिंगुअलिज्म में भी ये वर्ड यूज हुआ होगा। जो ये हैं नेचुरल अप्रोच वाले, जनरेटिविज्म वाले और ये फंक्शनलिज्म वाले, दे डोंट बिलीव इन फॉसिलाइजेशन। ठीक? जो जनरेटिविज्म वाले हैं, दे वेलकम एरर्स because they think that errors, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, they think that errors are a sign of progress। और जो फंक्शनलिज्म वाले हैं वो they don't care about errors। उसमें हमने पहले ही देखा है कि they don't care about fluency, they about accuracy, they only care about fluency, and they are followers of message focusedness and not form focusedness। उनके नजदीक एरर्स जो हैं वो उनको वो जिक्र नहीं करते, बॉदर ही नहीं करते एरर्स को। जी यस। और मैम जी जी मैम जो जनरेटिविज्म वाले हैं वो एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करते हैं ना? yes, they believe in grammar, but
एक्यूरेसी की एज सच उस तरह वो बात नहीं करते कि एरर्स को फौरन से खत्म कर देना चाहिए या एरर्स को क्या करना चाहिए। मैम दे टॉक अबाउट नेचुरल ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज। यस, मतलब एरर्स को माइंड ना करने का मतलब यही है कि वो दे लेट द एरर्स गो, कि अगर कोई एरर कर भी रहा है तो वो उसको वहां पे कंडेम नहीं करेंगे। ये आप उसमें नेचुरल अप्रोच जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें ज्यादा क्लियरली पता चलेगा कि हाउ दे डील विद एरर्स, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो तो नेचुरल अप्रोच है ना, जी तो उसमें पता चलेगा कि वैसे वो एरर्स को माइंड नहीं करते बल्कि एरर्स को वो गुड साइन समझते हैं। लेकिन वो एरर्स को डील कैसे करते हैं, when the students in class make errors, how the teacher deals with those errors, if he or she only ignores that or उसको पॉइंट आउट करता है या क्या करता है, ये जब हम नेचुरल अप्रोच पढ़ेंगे तो फिर उसमें हमें पता चलेगा। जी आगे, थर्ड कॉलम ऑफ फंक्शनलिज्म। Who is from Arij section? मैम निम्रा सहर, थर्ड कॉलम उनका था। Yes, Nimra, are you here? Where is she? अभी तक अपीयर नहीं हुई मैम क्लास, निम्रा। जी मैम क्लास में नहीं है अभी तक। मारिया पता करें किधर है। ओके मैम जी। अच्छा बच्चे, आप लोग ना नोट कर लिया करें, जो बच्चा जिसकी प्रेजेंटेशन है वो नहीं है उसका एक साइन अलग से बनाएं, जो आया हुआ है लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है उसका साइन अलग से बनाएं, ताकि हम बाद में देखें कि उनको कैसे डील करना है। अच्छा, और वकार, हुमा आपके सेक्शन में से मैम कौन हमारी है? क्लास में रुबीना कोसर थी मैम। मैम थी? उनकी यस मैम, लेकिन मैम वो आई नहीं है। मैम उनकी शाबाश। क्लास मैम उनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, वो मुझे कह रही हैं कि उनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। वो उससे क्या रिक्वेस्ट भेजेगी तो ज्वाइन होगी ना। मैम वो ट्राई कर रही है, कब से ही ट्राई कर रही है। अजीब बात है। अब फिर ये लास्ट कॉलम कौन करेगा? ये अब मैंने GRCR पे डाल दिया करना है, वो प्रेजेंट किया करेंगे जो भी एब्सेंट हुआ करेगा। कोई कुछ तो करे ना। मैम मैंने उसे कहा है कि अगेन ट्राई करो। हाँ जी, चले ठीक है। अच्छा, लास्ट जो कॉलम है उसमें मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे वो डिस्कोर्स एनालिसिस है। एक मिनट, ये है वैसे टेक्निकल, शायद ये लोग इसीलिए भाग गए हैं। अच्छा, इसमें डिस्कोर्स एनालिसिस की बात हुई है, इंट्रोडक्शन एनालिसिस भी ऐसी एक चीज है, कन्वर्सेशन एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस, कन्वर्सेशन एनालिसिस और इंट्रोडक्शन एनालिसिस ये एक जैसी ही चीजें हैं। मतलब जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसमें जो लोग हैं वो डिस्कोर्स एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसे बात करते हैं, तो उस सारे को उसका एनालिसिस करके उसमें से कोर्स डिजाइन किया जाता है, या फिर वो स्टूडेंट्स को या लैंग्वेज लर्नर्स को उसकी अवेयरनेस दी जाती है किसी भी तरह से। और इसमें जिसको उससे क्या होता है कि दे लर्न अबाउट दी लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स के, या वर्बल एंड नॉन वर्बल कह लें, वर्बल एंड नॉन वर्बल चीजें जो भी उन्होंने यूज करनी है इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, उसका उनको नॉलेज आता है। और ये कि आप डिस्कोर्स को कोहेरेंट और कोहेसिव कैसे बनाना है, इसका नॉलेज आता है। ठीक है, इससे ऊपर वाले में उसने जिक्र किया हुआ है हाइम्स के 4 जो कंपोनेंट्स हैं उनका। मतलब ये जो लास्ट कॉलम है ये डिस्कोर्स एनालिसिस और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के डिफरेंट
एस्पेक्ट्स की बात करता है कि फंक्शनलिज्म जो है उसने इनको भी कवर किया है, बिकॉज इट इज ये हमने शुरू में बात की थी कि फंक्शनलिज्म जो है इसने अरूज ही तब पकड़ा था जब ये हाइंस ने मॉडल प्रेजेंट किया था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का। सो फंक्शनलिज्म जो है उसमें लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के तौर पे देखा जाता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उनको सिखाने के बारे में, सोशल नॉर्म सिखाने के बारे में, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, डिस्कोर्स एनालिसिस, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, और ये मैसेज फोकस होते हैं, फॉर्म फोकस नहीं होते। होते कह लें या ये कह लें कि दे बिलीव इन मैसेज फोकसनेस एंड दे बिलीव इन फ्लुएंसी, नॉट इन एक्यूरेसी एंड फॉर्म। चलें, ये लास्ट वाले कॉलम वाले बच्चे अगर इस वक्त नहीं हैं तो नेक्स्ट ये कर लें, ठीक है, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी। ओके मैम। जी, अब फाइनली हम थेरीज पे फिर आ गए हैं। थेरीज, बिहेवियरिज्म एंड मेंटलिज्म। जी बच्चे। सना खालिद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज सना खालिद एंड माय टॉपिक इज बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है ये मतलब साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। ये आपने ये इन्हीं हैंडआउट से किया है ना जो पेज 114 पे शुरू हो रहे हैं? जी मैम। जी मैम चलें। हाँ ये वाले भी है और फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी नोट्स थे मेरे पास ना। अच्छा अच्छा, सही। इसमें जो फोकस किया गया है वो साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट पे किया जाता है। बिहेवियरिज्म इन्वेस्टिगेट करता है उन वेज को या इवेंट्स को जिनके जरिए मतलब इन्वायरमेंट जो हमारा है वो हमारे बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करता है। इसमें मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो एक इंडिविजुअल की, ये हमेशा से एक सब्जेक्ट रही है इंटरेस्ट का कि मतलब इसको स्टडी किया जाता है। यहाँ पे जो टू इम्पोर्टेंट थ्योरीज हमें दी गई हैं वो एक स्किनर की ये है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, और जो सेकंड वाली है वो हमारे पास चॉम्स्की की थ्योरी है, इनेट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जो स्किनर है उसने लैंग्वेज लर्निंग या मतलब जो हमारा बिहेवियर है उसको मतलब किस तरह से हमारा इसका प्रोसेस होता है, ये एक ऑपरेटिंग कंडीशन है कि हम इसमें बिहेवियरिज्म में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन हम मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है कि हम किस तरीके से मतलब लैंग्वेज को लर्न करते हैं। इसमें यहाँ पे ये है कि अपेरेंट वर्ड्स जो होते हैं वो अपेरेंट होते हैं, और अपेरेंट्स मीन्स कि हमारे वॉलेंट्री बिहेवियर होता है कि हम वॉलेंट्री बिहेवियर के थ्रू चीज़ों को लर्न करते हैं हमारी फ्री विल के जरिए। और ये जो है वो हमारा बिहेवियर जो होता है डेमोन्स्ट्रेट करता है सबसे पहले हमारे रिस्पॉन्स को कि हम किसी भी सिस्टम की तरफ मतलब किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसका जो रिवार्ड होता है वो पनिशमेंट होता है या मतलब रीइंफोर्समेंट होता है। उसकी कंडीशन में अगर तो हमारा जो फीडबैक हमें पॉजिटिव मिलेगा तो हम मतलब उन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे और फाइनली वो हमारी हैबिट बन जाएंगी। और इस अगर हमें नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो उस चीज़ को हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। और या फिर ऐसा होता है यहाँ पे कि हमें एक मतलब बेटर चीज प्रोवाइड कर दी जाती है कि हम उसकी बजाय वो वाली चीज वहां पे बोलेंगे। टीचर जो होता है अगर हम मतलब मिस्टेक्स करते हैं, हमारी एरर्स जो हैं उनको जज करता है और हमें उन मिस्टेक्स को, हमारी जो मिस्टेक्स हैं उनको वहीं पे स्टॉप कर देता है। यहाँ पे स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो एनिमल्स के साथ किए हैं। उसने मतलब एक रैट के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया है कि उसने एक बॉक्स के अंदर एक रैट को रख दिया है और उसके अंदर एक बार लगा दी है कि जब वो एक रैट है वो उस बार को क्रॉस करेगा तो उसको मतलब फूड मिलेगा। उसने नेक्स्ट फिर इस प्रोसेस को थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दिया है कि मतलब जब लाइट ऑन होगी और वो बार को मतलब क्रॉस करेगा, जब वो हंग्री होगा तो फिर उसको मिलेगा। फर्स्ट मतलब पहले थोड़ा सा वो कंफ्यूज होता है रैड, लेकिन फिर वो उसको मतलब लर्न कर लेता है इस चीज को कि जब अच्छा, आप लाइट। ऐसा करें सना, आप सिर्फ ये जो अब वाले हैंड आउट्स है ना
सिर्फ जी उस मैम। पे कंसंट्रेट करें। जी मैम। ठीक है। जी मैम। हाँ जी, एंड ट्राई टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जी मैम। रीइंफोर्समेंट, रेपिटिशन, इमिटेशन, और ये जो सारी चीजें हैं इन पे फोकस करें। जी मैम। जी बिहेवियरिज्म जो है वो स्टिमुलस के बारे में बात करता है कि किसी भी मतलब जो स्टिमुलस है उसके मतलब रिएक्शन में उसके हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको भूख लगी है, तो वो मतलब कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करेगा, जैसे मतलब एप्पल या मिल्क, इस तरह के। वो एक जब उसको एक भूख लगी है तो वो एक स्टिमुलस है, उसके रिस्पॉन्स के तौर पे वो मतलब वर्ड्स को प्रोनाउंस करेगा। इमिटेशन होगी तो वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करेगा। उसके बाद हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देंगे ना। तो अगर तो मतलब पॉजिटिव फीडबैक होगा तो वो उस चीज को जो हम उसको देंगे वो उसको उसी के साथ एसोसिएट कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिस्किट की एग्जांपल थी कि अगर वो हम हर जब भी मतलब वो इमिटेशन करता है या मतलब स्टिमुलस उसको हंगर फील होती है तो हम उसको बिस्किट देते हैं, तो उस वर्ड को उसके साथ एसोसिएट कर देगा एक सर्टेन टाइम के बाद ना। तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी। अगर हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो वो उस चीज को वहीं पे स्टॉप कर देगा। और आफ्टर रेपिटिशन ये उसकी मतलब आदत बन जाएगी कि उसकी ये हैबिट में शामिल हो जाएगा। जो बिहेवियरिस्ट थे वो सबसे पहले उन्होंने इस बारे में बात की थी कि हम लैंग्वेज को मतलब उसके ओरिजिन को या उसको मतलब फॉलो मतलब स्टडी करने की बजाय हम लैंग्वेज जो है उसको उसके प्रेजेंट लेवल पे मतलब स्टडी कर सकते हैं। इसमें बिहेवियरिज्म में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो है सबसे पहले लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, उसके बाद फोनोलॉजी है और लैक्सिस है कि मतलब वोकेबलरी वगैरह। लैंग्वेज का जो कंटेंट है और स्ट्रक्चर है उन चीज़ों को हम स्ट्रक्चरलिज्म से लेंगे, और उसके बाद जो लैंग्वेज लर्निंग का मेथड है उसको हम बिहेवियरिज्म से लेंगे। अच्छा, इसको ये नहीं, योर पार्ट इज ओनली टू डिस्क्राइब बिहेवियरिज्म, बस वो हो गया तो वो काफी है। जी मैम। मैम ठीक है बिहेवियरिज्म में आप। यही है कि इमिटेशन होती है, उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं, और उस मतलब इमिटेशन के रिस्पॉन्स हम जो वर्ड्स मतलब बोलेंगे उसकी पॉजिटिव या मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी। और अगर पॉजिटिव होगी तो रेपिटिशन होगी, अगर नेगेटिव होगी तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। और इसमें बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। बाय ऑब्जर्वेशन हम मतलब जो लैंग्वेज है उसको लर्न करते हैं। और इसमें यह है कि मतलब अगर एरर्स हैं तो उनको फॉसिलाइज कर दिया जाता है, उनको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। एरर्स को फॉसिलाइज कर दिया जाता है? जी मैम। व्हाट, इसका क्या मतलब है? मैम मींस कि जब हम कोई भी एरर करेंगे तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, तो उस एरर को वहीं पे मतलब स्टॉप कर दिया जाएगा ताकि वो हमारे माइंड में परमानेंटली स्टोर ना हो जाए। फॉसिलाइज होना तो हम स्टोर होने को कहते हैं ना। तो आप ये कहेंगे हाँ, एरर को अनफॉसिलाइज कर दिया जी जाता है मैम। उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देके। जी मैम। जी वो कार आपके पास कौन है इस बिहेवियरिज्म के लिए? सब सबका नाम है निम्रा का है। इन दोनों में से मैम किसी एक के पास होगा। किन दोनों में से? मैम किसअब्दुल या निम्रा मुजफ्फर। मैम मेरे पास जी मेंटलिस्टिक थ्योरी है। अच्छा, तो बिहेवियरिज्म किसके पास है? निम्रा, निम्रा कह रहे हैं आप? मैम सानिया फरीद के पास है मैम ये। सानिया फरीद। जी सानिया। इज शी हेयर?
Tanya is not here. No, ma'am. If she's not here, then we can ask Kissa to present mentalism. पहले मैं थोड़ा सा इसको behaviorism को just in a couple of sentences में इसको describe कर दूं, फिर किस्सा, और फिर साथ ही रीज आप बताइएगा कि आपके पास कौन है इसको जिसके पास mentalism है. So I will talk about behaviorism, that basically it depends on stimulus response reinforcement and repetition theory, जो ये आपके हैंडआउट्स में भी लिखी हुई है. स्टिमुलस जो है वो बच्चे का हंगर होता है बेसिकली. अब मैंने ये बात कई दफ़ा रिपीट की है कि ये दोनों थेरीज जो हैं ये L1 के लिए बनाई गई थी. सो L1 एक्विजिशन के लिए. सो स्टिमुलस इज द हंगर ऑफ अ चाइल्ड, एंड इन रिस्पॉन्स to that hunger the child speaks something, and this response is learned by imitation from his or her adults. भूख लगी हुई है उसे, उसने कुछ मांगना है, और वो मांगने के लिए जो रिस्पॉन्स है जो उसने देना है, जो उसने बोलना है, स्पीकिंग इज और स्पीच इज हिज रिस्पॉन्स, वो उसने इमिटेट करना है अपने बड़ों से. ठीक है. एंड अगर वो उसको पॉजिटिवली, अगर वो उसको सही तौर पे, नॉट पॉजिटिवली, अगर वो उसको करेक्टली इमिटेट कर लेता है और सही वर्ड बोलता है, तो बिहेवियरिस्ट के मुताबिक उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, उसको जो चीज़ वो चाह रहा है वो मिल जाती है, और वो उसी फिर इस प्रैक्टिस को वो कंटिन्यू करता है कि व्हेनेवर ही विल फील हंगर ही विल कीप ऑन रिपीटिंग टू स्पीक दैट वर्ड. ठीक है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से वो रेपिटेशन करता है, एंड रेपिटेशन फाइनली ends in habit formation or learning of that particular word or sentence. अगर वो बच्चा रिस्पॉन्स में जो सही चीज नहीं बोलता, सही वर्ड नहीं यूज करता, ये सही सेंटेंस यूज नहीं करता, तो फिर उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलने से वो बच्चा वहीं पे स्टॉप कर देता है. उसको ना उसकी रेपिटेशन होती है, और ना ही उसकी हैबिट फॉर्मेशन, और ना ही लर्निंग. ठीक है. सो दिस वाज द थ्योरी. इस पे ऑब्जेक्शंस हुए थे. ऑब्जेक्शन मेरा ख्याल है मेंटलिज्म में डिस्कस होंगे जो हुए थे. वैसे मैंने आपको पढ़ाए भी थे ये फर्स्ट सेमेस्टर में, बल्कि हैंड आउट भी शायद एक पेज भी दिया था मैंने, जिसमें इस पे जो ऑब्जेक्शन है 3 है या 4, वो ऑब्जेक्शंस भी दिए हुए हैं. ठीक है. सो दिस वाज, इसको आपने सब लोगों ने खुद भी पढ़ना है. ये जो चीजें प्रेजेंट हुई हैं आज, ये हमने रिवाइज की हैं. स्टिल द हाउस इज ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन. सो इन यू विल ऑल रीड इट from preparation point of view of your exam, and if there is any difficulty we can discuss discuss that in your next classes as well. अच्छा जी, किस्सा आप स्टार्ट करें मेडिसिन, और अरीज आप बच्चा ढूंढ के रखें नेक्स्ट. मैम सोबिया कौसर हैं, लेकिन शायद उन्होंने आपसे एक्सक्यूज किया है, उनका पैकेज एंड हो गया है शायद. चलें आप नोट कर लें उनका नाम, और किस्सा चलें आप स्टार्ट करें. अस्सलाम वालेकुम. बिहेवियरिज्म के रिएक्शन में बिहेवियरिज्म के जो रिएक्शन में नॉम चॉम्स्की ने मेंटलिस्टिक थ्योरी दी थी, और मेंटलिस्टिक थ्योरी में रोल ऑफ माइंड इन लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताया गया है, और इसमें इस चीज़ को आर्ग्यू किया गया है कि ह्यूमंस आर बोर्न विद इनेट एंड बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेजेस. और स्पेसिफिकली इसमें नॉम चॉम्स्की ने एक डिवाइस बताई है, बायोलॉजिकल डिवाइस इन अ माइंड, जिसे हम लैड कहते हैं, और वो तब एक्टिवेट हो जाती है जब उसके ऊपर एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज होता है. और इस डिवाइस का जो फंक्शन ये है कि वो फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज को प्रोसेस करती है. इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्सपोजर चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद लैंग्वेज जो भी हम बच्चे को दे रहे हैं एक्सपोजर, उसी की प्रोसेसिंग होगी इस ही डिवाइस के थ्रू.
और उसने ये क्लेम किया था कि चाइल्ड इज इनेटली pre-programmed to acquire language, or every child goes through this process during L1 acquisition. और इसमें सेकंड बात उसने मेंटल ग्रामर की थी, जिसको उसने यूनिवर्सल ग्रामर भी कहा है, कि इज बिल्ड इन चाइल्ड माइंड बाय बॉर्न विच अरेंजेस द जंबल ऑफ साउंड्स एंड मेक करेक्ट एज वेल एज इनकरेक्ट सेंटेंसेस। इसमें उसने ये बात की थी कि जो मेंटल ग्रामर है वो चाइल्ड के अंदर बाय बॉर्न कंस्ट्रक्ट होती है, और जब भी वो कोई जंबल ऑफ साउंड्स या साउंड्स को परसीव करेगा तो उसको उस मेंटल ग्रामर में फिक्स करता रहेगा, और उससे वो करेक्ट सेंटेंसेस भी प्रोड्यूस करेगा और इनकरेक्ट भी कर सकता है, जब तक कि उसने फुली एक्वायर नहीं कर लेनी उस लैंग्वेज को। मतलब कि जैसे वो अगर इनकरेक्ट कोई सेंटेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो तब तक वो करेगा जब तक कि वो फुली एक्वायर नहीं कर लेगा उस लैंग्वेज को, और जब वो एक्वायर कर लेगा तब वो करेक्ट स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करने की उसमें एबिलिटी आ जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि मैंने पहले शुरू में वो नाउन फ्रेजेस यूज करेगा, फिर वर्ब फ्रेजेस यूज करेगा, और ये जो एक सीक्वेंसिंग होगी ये एक नेचुरल या यूनिवर्सल फिनोमिना है उसके माइंड का। और इसमें ये भी बात की हुई है कि जैसे एक चाइल्ड है 4 ईयर का है और वो कह रहा है कि आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव कंप्लीट माई लंच, तो वो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये सीक्वेंस है, ये अपनी मेंटल ग्रामर की हेल्प से वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। और इसमें इसको हम जनरेटिव ग्रामर भी कह सकते हैं कि वो फाइनेट नंबर ऑफ रूल्स या फाइनेट नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स का उसके ऊपर एक्सपोजर होता है, लेकिन वो इनफिनिट नंबर ऑफ जो है वो सेंटेंसेस को प्रोड्यूस कर सकता है, और ये इसमें बाय बॉर्न कैपेबिलिटी होती है। और उसने चॉम्स्की ने ये भी क्लेम किया था कि हम L2 यानी कि L2 को भी इसी तरीके से लर्न कर सकते हैं अगर जो लर्नर है उसके पास रूल्स ऑफ ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज हो, तो उसका ये भी क्लेम था। और इसमें हमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ये L1 एक्विजिशन के लिए थ्योरी है, और इसमें हमें कोई चाइल्ड को कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और एक दफ़ा अगर लैड जो है वो एक्सपोज हो जाए लैंग्वेज से तो आगे उसकी जो प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेटिक होती है। और इसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में भी बात की हुई है, जो अभी मैंने बताया कि फाइनेट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर से वो इनफिनिट नंबर्स ऑफ फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स जो है वो चाइल्ड प्रोड्यूस करता है। और इसमें बस यही बात है। एनी क्वेश्चन? हेलो जी किसान, जी और बच्चे, क्वेश्चन? इसमें आपके हैंडआउट्स में सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर की भी बात की हुई है। इसमें उसने कहा है सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर में कि पर्सन टू पर्सन जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर वेरी करता है। मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर वाले नोट्स हैं मैम, उससे मैंने ये किया। ग्रुप टू ग्रुप, कम्युनिटी टू कम्युनिटी जो सरफेस स्ट्रक्चर है ना वो वेरी करता है, और इसमें यही बात है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ, फिर आप खुद से इसको पढ़िएगा सब लोग। जो डीप स्ट्रक्चर हम कहते हैं उस मीनिंग को जो हम कन्वे करना चाह रहे होते हैं, द मैसेज वी हैव इन आवर माइंड, वो डीप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और जब हम उसको लैंग्वेज फॉर्म में अटर करते हैं तो फिर उसको हम सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हमने वो देखा था, क्या देखा था फंक्शनलिज्म में, क्या कौन सा मेथड था वो, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसमें हमने देखा था ना कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को ये इंडिपेंडेंस दे देता है कि वो जिस स्ट्रक्चर में चाहे बोल सकता है। हुई थी ना ये बात कल, कि वो इम्पोज नहीं करता कि आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर सेंटेंस यूज करना है या पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना है, आप किसी भी तरह से अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वैसी ही कि आपके ज़हन में जो भी
जी मैम सराफिस बोल रहे हैं कि क्लास लें, ज्वाइन करें अभी। अच्छा अच्छा, कर लेते हैं, खैर है, क्या हो गया है? तो सर उनको कह दें 5 मिनट का। ओके मैम। अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी? जी, मैं बात कर रही थी कि डीप स्ट्रक्चर पे जो आप मीनिंग सोच रहे होते हैं, वो मीनिंग आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट सरफेस स्ट्रक्चर्स में। यू कैन एक्सप्रेस दैट इन डिफरेंट वेज। ठीक, तो वो सारी सरफेस स्ट्रक्चर्स होती हैं उसकी। बाकी इसमें वही चीजें हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पहले से उनके पास ये कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, और वो ट्रिगर होती है एक्सपोजर से। और इसमें ये है कि दे डोंट बिलीव इन द रोल ऑफ फीडबैक। फीडबैक का इस पर कोई असर नहीं होता। यूनिवर्सल ग्रामर में ये बिलीव करते हैं। और एक कोई बात थी अभी जो मैं कहना चाह रही थी, एकदम क्यों मेरे जहन से निकल गई है। There was something which I wanted to share. Yes, the word mentalism जो यूज किया गया इसके लिए, that shows some mental capability। ठीक है, बिहेवियरिज्म जो है वो कॉन्शियस एफर्ट को में बिलीव करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग की कॉन्शियस एफर्ट में। जबकि मेंटलिस्ट जो हैं ये कॉन्शियस एफर्ट में बिलीव नहीं करते, बल्कि मेंटल इन्वॉल्वमेंट में बिलीव करते हैं कि मेंटल कैपेबिलिटी या मेंटल कोई चीज ऐसी जो मेंटल है उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। ठीक है, Yes, ma'am. you have to read all these things during weekend। नेक्स्ट जब आप, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. चले ठीक है, फिर आप अपनी क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।